اب بات بچے کی چلی تو بچے کا ایک پیکج بتاتا جاؤں. کبھی بچوں کو دعا ضرور کروایا کریں اور بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. سلطان محمود غزنوی جہاں اولیاء سے دعائیں لیتا تھا، جہاں تہجد پڑھتا تھا، جہاں تسبیح پڑھتا تھا، جہاں نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی افغانستان میں زلزلہ آیا اور سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد بھی اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. اے بلے شاہ نے کہا ہم مریں گے نہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس کی زندگی میں تہجد، نفل، اعمال سب کچھ تھا، لیکن پتہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی منزل پہ جانا ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی کو، جب بھی کسی منزل پہ جانا ہوتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا. ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا سلطان. غذا، کھانے، چیزیں اور چیزیں بنوا کے پھر ان کو بٹھاتا اور کہتا دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اتنا آزمودہ عمل ہے. زندگی کا کوئی منزل، کوئی کمال چاہیے. آپ کو عزت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، مقدمات سے خلاصی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا در چاہیے، حج بیت اللہ کی زیارت چاہیے، حج عمرہ بار بار چاہیے. زندگی کی کوئی منزل ہے آپ کہتے ہیں ناممکن ہے. ایسے بچوں کو پکڑ، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر وہ خطائیں نہیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے دعائیں کرائیں. انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے کمالات ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھی برکتیں ہیں. میں نے جس کو بھی بتایا، دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، غور سے سننا اس حدیث کو، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے تو اللہ بندوں کے گناہوں، اتنے گناہ کہ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا، سبزہ نہ ہوتا، چیزیں نہ ہوتی. اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں اس کا مفہوم. کبھی ہم نے سوچا کہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، تو کبھی ان بے زبانوں اور بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں. آئیں پھر آج آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیزیں. انارکلی لاہور میں ہر بندہ شوق سے ایک فالودہ پینے جاتا ہے، اس کا نام ہے یوسف فالودے والا. آپ میں سے پتہ نہیں کسی کا واسطہ پڑا یا نہیں پڑا. انارکلی میں، لاہور میں فالودے کی اور دکانیں بھی ہیں. کسی نے اس سے پوچھا فالودے کی دکانیں تیرے مقابلے میں بڑی لگی، ناکام کیوں ہو جاتی ہیں اور تیرا ہی فالودہ بکتا ہے؟ یہ انارکلی کے تھانے کا SHO تھا، مجھے یاد ہے، مر گیا بیچارہ ریٹائر ہو کے. اس نے مجھے یہ بات بتائی. یہ تھانے کے ساتھ ہی اس کی دکان ہے آگے کر کے. اس نے کہا جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. بڑے کام کی بات ہے. جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے
उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। उसके जिम्मे क्या, रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है। कहा मैं दो काम करता हूं, दो काम करता हूं, दो काम करता हूं। एक तो छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। और एक कब्रिस्तान के कीड़े, चिड़ियां, कौवे, परिंदे, इनकी ग़िज़ाओं का एहतमाम करता। एक बच्चों से दुआ कराता हूं। करा के देखो बच्चों से दुआ। गरीबों के बच्चे वैसे ही बहुत सारे होते हैं। मेरे पास एक गधा रेड़ी वाला आया, कहने लगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं कहा बच्चे कितने हैं? कह रहे आपकी दुआओं से वालेबन 8 या 9 बच्चे उसने बताए। मैंने कहा 8-9 इसमें आजम तेरे पास है, तू कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तू कहते हैं कुछ भी नहीं है। कह रहे क्या करूं? मैंने कहा दुआ मंगवाना आती है? कह रहे नहीं, मैं तो मौलवी साहब को बुलाता हूं, वो खत्म दे जाते हैं, दुआ कर जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा, वही हलवा खुद खा जाया कर, वो रोटी खुद खाओ। कहने लगे मैं तो अनपढ़ हूं। मैं कहा गुर मैं बताता हूं। तो बच्चों को सामने बिठा, मीठी चीज पकवाता है पकवा, लेकिन पहले ना खिलाना, बच्चे भाग जाएंगे, तेरे हाथ नहीं आएंगे। और सामने रख, और फिर जो अल्लाह से मांगना है, दौलत, दुनिया, चीजें, नेमतें, रिज्क, आखिरत मांग, और बच्चों को कहे आमीन कहे। और वो कभी इधर छेड़ेंगे, कभी इधर छेड़ेंगे। अल्लाह वाले उन मासूमों का आलम यह है कि उनकी गफलत की आमीन भी अल्लाह के यहां कबूल है। गफलत की आमीन भी कबूल है, गफलत की आमीन। और बच्चों को तो कहे आमीन कहे, और वो आमीन कहते रहे, तो दुआ करता रहे, करता रहे। उसके बाद उन्हें खिला दे। रोज कर दुआ, हफ्ते के बाद कर, 2 हफ्ते के बाद कर, हफ्ते में 1 बार कर, जब भी कर, मुसलसल दुआ कर। एक घर में जो रोटियां बचे, 1-2 रोटियां जायद पका ले, उनके टुकड़े करके चिड़ियों को डाल, पानी रख। कोई बाजरा, कोई ज्वार, कोई मकई, कोई चावल, कोई गंदम, ये भी मिक्स करके रख और परिंदे खाएं। और जब परिंदे खाएंगे फिर तो अल्लाह की मदद को देख, फिर तो रिस्क देख, तो वुसअत देख। और वो कुछ अर्से के बाद मेरे पास आया, और सही बात बताऊं, गधा रेड़ी वाला बूढ़ा हो गया था, सारी उम्र। वो कहने लगा मैं गधे का पेट भी आज तक मेरा नहीं भरा, और मेरा भी पेट भी कभी नहीं भरा। मेरा तो गधा भी हमेशा भूखा रहता था, और मैं भी भूखा रहता था। और जब से मुझे आपने बेजुबानों के बारे में बताया है, ये बच्चे बेजुबान होते हैं, मासूम होते हैं। कहने लगे जब से मैंने दो बेजुबानों के साथ मामले किए हैं, बस ठीक है, अल्लाह ने मेरी ग़िज़ाई निजाम बढ़ा दिया। आज तक मैं भी भूखा रहा, और मेरा गधा ही भूखा रहा। और जब से मैंने यह करना शुरू किया है, मैं भी सेहतमंद हूं, पेट भरता हूं, और मेरा गधा भी पेट भरता है। कहने लगे इतने मरले का प्लाट ही 1 लिया, इतने मरले का प्लाट 1 लिया, बेटे को मोटरसाइकिल खरीद। मैंने कहा तू गधा ही, तू ही छोड़ दे गधे को, तू भी कुछ और कर। कह रहा ना साईं, बस गधे के साथ मेरी दोस्ती है, पर अल्लाह ने मुझे दिया बहुत है। बच्चों से दुआ कराएं, और बेजुबानों की ग़िज़ा का ख्याल रखा। और हदीस में आता है अगर बच्चे ना होते और बेजुबान न होते, अल्लाह पाक बंदों को, जमीन वालों को एक कतरा बारिश का ना देता, एक गंदम दाना और एक ग़िज़ा का जर्रा न देता, जितने हमारे गुनाहों की वजह से जमीन काली हो गई है। बनी इसराइल ने सिर्फ एक गुनाह किया था कि हफ्ते के दिन अल्लाह ने फरमाया कि शिकार न करो, उन्होंने शिकार किया। फिर सब्ते फकुलना लहू कूनू किरादतन खाशिईन, अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुमने हमारी नाफरमानी की है, जाओ जलील बंदर बन जाओ, बंदर बन जाओ। हमने कितनी नाफरमानियां की, मदीने वाली की, कमली वाली की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने हमारी शक्लों को मस्क नहीं किया। और ये जो 2 अमल है, ये दो अमल बहुत पुरतासीर है रिस्क के लिए और रिस्क के रूहानी के लिए। एक साहब मुझसे कहने लगे कोई दुनिया में जुनैद बगदादी,
पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीज बुस्तामी, फलां बुजुर्ग सुनते थे मैं भी बुजुर्ग बन सकता हूं। मैंने कहा रब वही है, उसकी करीमी वही है, तो क्यों नहीं बन सकता। तो कहने लगा क्या करूं। मैंने कहा 5 काम कर ले, अल्लाह तुझे विलायत देगा इंशाअल्लाह। और आज वो जवान वली है, मैं अक्सर उसको फोन करके दुआओं का कहता हूं। मैं कहता हूं मेरे लिए दुआ कर देना। जवान है, कोई 28-29 साल का, और वक्त का वली है। उसकी नजरों में विलायत, उसके जज्बों में विलायत, उसके तन्हाइयों में विलायत, उसके सोचों में विलायत, उसके कदमों में विलायत है, उसके कारोबार रिस्क में तहारत है और विलायत है और रहमत है। मैंने उसको 5 काम बताए थे। एक तो मैंने कहा था हर वक्त बावजू रहना, और दूसरा मैंने कहा था रिस्क के हलाल की आखिरी कोशिश करना, और तीसरा मैंने कहा था बच्चों से दुआ कराना, ऐ अल्लाह अपने गैब के खजाने से विलायत के मेरे लिए रास्ते हमवार कर। मौला जब तू चाहता है हो जाता है, और जब तू चाहता है फिर रास्ते खुद खुलते हैं, राहें खुद खुलती हैं, मंजिलें खुद मिलती हैं। फिर तू रास्ते भी दिखाता है तो राहें भी दिखाता है। 2 बंदों के साथ दोस्ती लगाएं तो सिर्फ बच्चों के साथ। आज से पहले बच्चे दर्द सर थे। मुझे एक साहब कहने लगे हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं, दर्द सर होते थे। अब मैं कहता हूं ये बच्चे नहीं तो इसमें आजम है, ये तो वली है, मेरी दुआएं कबूल कराएंगे। अल्लाह जो ही मसला भी हो, बच्चों को इकट्ठा करता हूं, कोई टॉफी, कोई बिस्किट, कोई चीजें लेके रख लेता हूं। पहले नहीं देता, खा के भाग जाते हैं, रख लेता हूं। फिर मैं कहता हूं मैं दुआ करता हूं, तुम दुआओं पे आमीन कहना। और कहा कि दुआओं पे फिर मैं वो आमीन कहते हैं, और मैं गिड़गिड़ाहट से अल्लाह से भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के दुआ करता हूं, और अल्लाह पाक मेरी जरूरत को गैब से पूरा कर देता है, और अल्लाह मेरी मुश्किलों को हल कर देता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल, बगैर सवारी और बगैर तोशा के, तोशा से मुराद खाना पीना, सवारी, सफर, बस ऐसे मक्का मुकरमा की तरफ चल दिया। 3 दिन तक इस तरह बगैर खाए पिए चलता रहा, और चौथे दिन भूख की शिद्दत का, प्यास की शिद्दत का इतना एहसास हुआ, मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हुआ कि शायद अब मर जाऊंगा। असबाब के बगैर चला। मैं जंगल में कहीं सायेदार दरख्त का भी पता नहीं था।